Hello students, I am Puneet from Prab Kirpa classes. Today's topic is internet. We will discuss the importance of internet in our life. We will see what are the advantages and disadvantages of internet. Who owns the internet and what is the difference between internet and World Wide Web? So let us start. The invention of the internet was the biggest discovery by mankind in the 20th century. The internet is the most commonly used term in today's world and plays a very important role in the everyday life of people. Internet is a network of networks. The internet is a global network connecting millions of computers. Most traditional communication media, including telephony, radio, television, paper mail, and newspapers, have been reshaped, redefined, and even bypassed by the internet, giving birth to new services such as email, internet telephony, internet television, online music, digital newspapers, etc. The internet is also often referred to as the net as a short form of network. 20th सेंचुरी में बहुत सी इन्वेंशंस हुई। उनमें से एक इन्वेंशन इंटरनेट की है। आजकल इंटरनेट के बारे में बहुत सी बातें की जाती हैं। इंटरनेट हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इंटरनेट नेटवर्क्स का नेटवर्क है। इंटरनेट में एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं। पुराने ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन मीडिया जैसे टेलीफोनी, रेडियो, टेलीविजन, पेपर मेल को इंटरनेट ने रीशेप कर दिया है, रीडिफाइन किया है और अब इंटरनेट ने नई सर्विसेज को जन्म दिया है जैसे ईमेल, इंटरनेट टेलीफोनी, इंटरनेट टेलीविजन, ऑनलाइन म्यूजिक और डिजिटल न्यूज़पेपर। इंटरनेट को नेट के नाम से भी जाना जाता है। You may have a computer network at your school, college, and in your office, etc. Even your mobile phone and laptops are network. All these networks added up together constitute the internet. Users of internet are increasing day by day. In 2005, there were only 16% users of internet worldwide. Today, the internet is used by more than 50% of the world population. More than 190 countries are linked into exchanges of data, news, and opinions. Different ways to connect to the internet. We can connect to the internet in many ways, such as dial-up, broadband connection, Wi-Fi, satellite, and cellular telephone technology. आपके घर में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, शॉप में, हर जगह कंप्यूटर नेटवर्क होगा। यहाँ तक कि आपके मोबाइल फोन और लैपटॉप भी जो हैं वो नेटवर्क की उदाहरण है। इन सभी नेटवर्क को अगर जोड़ दिया जाए तो ये सारे नेटवर्क का एक हिस्सा है। जो इंटरनेट के यूजर्स हैं वो उनकी गिनती दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 2005 में इंटरनेट के यूजर्स की संख्या दुनिया भर में सिर्फ 16% थी। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन का लगभग 50% लोग इंटरनेट को यूज करते हैं। दुनिया के लगभग 119 कंट्रीज जो हैं आपस में इंटरनेट के द्वारा जुड़े हुए हैं। इंटरनेट को हम कई तरीकों से अप्रोच कर सकते हैं जैसे डायल अप कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, वाईफाई, सैटेलाइट या सेलुलर टेलीफोन टेक्नोलॉजी। Uses of internet. Number 1, communication. We can communicate with other people all over the world through email, WhatsApp, Viber, Skype, WeChat, etc. Number 2, education material. Educational material at all levels from preschool to postdoctoral is available from websites. We can seek any reading material and the internet will get it for us from any server in any part of the world. Number 3, job hunting. Job seekers can apply online for jobs using the internet. Number 4, entertainment. You can watch or listen to anything online and at any time you want. Those things can be movies, music, TV shows, etc. Fifth, online banking.
Internet has made it possible to do banking transactions at ease sitting at home or while on mobile. अब हम बात करते हैं इंटरनेट के यूजेस की। सबसे पहले है कम्युनिकेशन। हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे किसी भी व्यक्ति से हम व्हाट्सएप, ईमेल, वाइबर, स्काइप, वीचैट के द्वारा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब बात है एजुकेशन मटेरियल। अगर हम एजुकेशन मटेरियल की बात करें तो छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़ी से बड़ी पोस्ट डॉक्टरल एजुकेशन मटेरियल जो है वो हमें वेबसाइट्स पर मिल जाता है। हमें कोई भी रीडिंग मटेरियल चाहिए तो इंटरनेट जो है वो हमें प्रोवाइड कर देता है। अगर हम जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हम ऑनलाइन भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक इंटरनेट एंटरटेनमेंट की बात है तो हम किसी भी समय कोई भी म्यूजिक सुनना चाहें, मूवी देखना चाहें, टीवी शोज देखना चाहें तो हम इनको ऑनलाइन देख या सुन सकते हैं। हम घर बैठे या मोबाइल पर ऑनलाइन बैंकिंग भी किसी भी समय कर सकते हैं। 6. Cashless transactions. Bill payments through debit cards, credit cards, UPI gateway are on the increase. 7. Location access. Some applications like Google Maps help us in locating the place where we want to go. 8. Remote access. The internet allows computer users to remotely access other computers. An accountant sitting at home can audit the books of a company based in another country. 9. Opportunity to widen business by advertising products online and by creating on website. 10. Online shopping. Internet has made it possible by products and services online. Research. We can use search engines such as google.com to search any information on the net. अब हमारे पास अगला पॉइंट है कैशलेस ट्रांजैक्शन। अगर हमने किसी भी बिल की पेमेंट करनी हो, चाहे मोबाइल फोन के बिल की, इलेक्ट्रिसिटी का बिल या किसी भी शॉप पर जाकर उसका बिल पे करना हो तो हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई गेटवे के द्वारा कर सकते हैं। अगर हम किसी को मिलने के लिए जाते हैं तो हम कई एप्लीकेशंस जैसे गूगल मैप्स के थ्रू उस लोकेशन को सर्च कर सकते हैं। अगर सपोज करो किसी के कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है तो हम दूर बैठे ही उसके कंप्यूटर की एक्सेस लेकर उसके कंप्यूटर को की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि अपने बिजनेस को बढ़ावा देना है तो हम अपने प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और इसके लिए हम अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं। अगर हम ऑनलाइन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बाय करना चाहे तो हम इंटरनेट पर ऐसा भी कर सकते हैं। अगर हमने किसी भी सब्जेक्ट पर रिसर्च करनी है तो सर्च इंजन जैसे google.com इसमें हमारी काफी मदद कर सकते हैं। 12th. Other uses of the internet include electronic newspapers and magazines, tracking the vehicle and monitoring children in the home from outside. 13th. In the wake of catastrophic disasters and COVID-19, citizens have used the internet to donate to charities in an unprecedented manner. 12th पॉइंट है कि इंटरनेट के और भी कई यूजेस हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर्स, इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन्स। अगर आपके पास बहुत बड़ी ट्रकों की, बसों की फ्लीट है तो आप अपने व्हीकल को ट्रैक करने के लिए इंटरनेट की मदद ले सकते हैं। अगर आप कहीं घर से बाहर हैं और आप अपने घर में बैठे बच्चे को मॉनिटर करना चाहते हैं कि वो क्या कर रहा है तो इसमें भी इंटरनेट जो है आपकी मदद कर सकता है। ये जो 13th पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ह्यूमैनिटी पॉइंट के व्यू से। जैसे कि कोविड-19 हुआ या कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर्स हो जाते हैं कई बार, तो उस समय पर सिटीजन्स जो हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जो सिटीजन्स हैं उन्होंने इंटरनेट के द्वारा डोनेशन बहुत दिए हैं जिससे कि ह्यूमैनिटी का बहुत भला हुआ है। Who owns the internet? No one actually owns the internet and no single person or organization controls the internet in its entirety. The internet consists of many local, regional, national and international networks. Both public and private organizations own networks on the internet. These networks, along with telephone companies, cable and satellite companies, and the government, all contribute towards the internal structure of the internet.
No single person, company, institution, or government can lay claim that it is the owner of the internet. Each organization on the internet is responsible only for maintaining its own network. The internet works because of a system of rules called protocols. Many organizations like the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, the Internet Engineering Task Force, the Internet Society, etc., oversee the Internet's infrastructure and protocols. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि इंटरनेट का मालिक कौन है। असल में इंटरनेट का कोई भी सिंगल पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन मालिक नहीं है। सभी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भी हैं, वो जब हम एज एन इंडिविजुअल बात करें तो हर एक ने कोई ना कोई कंप्यूटर सिस्टम अपने ऑफिस में, शॉप्स में, इंडस्ट्रीज में लगाया हुआ है। ये जहाँ गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने भी इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम लगाए हुए हैं। तो ये सारे सिस्टम जो है, नेटवर्क्स मिलकर इंटरनेट बनाते हैं। कोई भी सिंगल पर्सन, कोई भी एक सिंगल कंपनी, कोई भी एक गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन ये नहीं कह सकती कि वो इंटरनेट की मालिक है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट या सिंगल पर्सन जो भी उसका अपना नेटवर्क है उसको वो खुद ही मेंटेन करता है। इंटरनेट जो है वो कुछ रूल्स को फॉलो करता है जिसको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। इंटरनेट की जो फंक्शनिंग है या इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रोटोकॉल्स है उनको देखने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबर्स, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स या इंटरनेट सोसाइटी एक्सेट्रा। Advantages of internet. Number 1. Information search has become much quicker and easier without having to go to traditional libraries. Number 2. The internet allows greater flexibility in working hours and location. Number 3. We can purchase products and services and much more online. Number 4. Internet helps in downloading files, music, videos quickly and easily. 5th. Internet has made the communication much easier. We can send any information to other person sitting anywhere in the world. 6th. We can meet and interact with people from all over the world. इंटरनेट पर हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो है जल्दी से और आसानी से ढूंढ सकते हैं। इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए हम को ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज में जाने की जरूरत नहीं है। हम दिन के किसी भी समय, दिन हो, रात हो, दोपहर हो, किसी भी समय जो है इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। और किसी भी जगह पर बैठकर अगर हमारे पास कंप्यूटर है और इंटरनेट का कनेक्शन है तो हम कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बाय करना है तो हम ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इंटरनेट की मदद से हम फाइल्स को या म्यूजिक या वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट ने लोगों के बीच में कम्युनिकेशन को काफी आसान कर दिया है। हम किसी भी दूसरे के साथ इंटरनेट पर जो है बात कर सकते हैं और उससे इंफॉर्मेशन ले भी सकते हैं। Disadvantages of internet. Number 1. Health problems. The internet addiction has forced us to stay on bed and do all the things online. Some people tend to use social networking sites till midnight, which can obviously lead to negative effect on both mental and physical health of the individual. Number 2. Adverse effect on many children. Many children get addicted to social networking websites and pay less attention to their studies. Number 3. Social isolation. The bad effect of internet is that the internet has increased the risk of isolation, alienation and withdrawal from society. 4. Online gaming. Game addiction has become a global issue today. Many of the games are reported to be very dangerous like PUBG, Blue Whale, etc. 5th, untamed cyberspace. The actual content on the internet continues to be untamed cyberspace. अब हम इंटरनेट के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हेल्थ प्रॉब्लम। आजकल इंटरनेट की एडिक्शन लोगों को इतनी ज्यादा हो गई है कि हम अपने बेड पर ही बैठे रहते हैं और ये चाहते हैं कि सारी काम जो है वो ऑनलाइन हो जाए। हम क्या कर रहे हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट हर समय देखते रहते हैं, चाहे रात के 12 की क्यों ना बज जाए, हम व्हाट्सएप चेक करते रहते हैं, फेसबुक पर लगे रहते हैं। इससे हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को नुकसान जरूर पहुंचता है। जहां तक बच्चों का सवाल है, वो भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर के बहुत एडिक्टेड हो गए हैं।
और उन्होंने अपनी पढ़ाई पर या स्टडीज पर कम ध्यान देना शुरू कर दिया है, क्योंकि इंटरनेट की कई लोगों को इतनी एडिक्शन हो गई है। इससे जो लोग हैं वो बाहर, घर से बाहर निकलकर दूसरे लोगों से बातचीत करने में से भी कतराते हैं। इंटरनेट पर ऑनलाइन गेम का भी प्रचलन बहुत बढ़ गया है और ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम भी बन गई है। कई जो गेम्स हैं जैसे पबजी और ब्लू व्हेल जो हैं, वो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत ही डेंजरस गेम्स हैं। जो इंटरनेट पर जो एक्चुअल कंटेंट है उसके बारे में उस पर कोई भी, किसी का भी कोई भी कंट्रोल नहीं है। 6. Distraction. Internet distracts employees in their working. 7. Cyber frauds, virus attacks. Cyber crimes are increasing day by day. Online frauds have hit our society very badly. Hackers launch spam and virus attacks. They attempt to gain unauthorized control or to access private information to cause interruptions and commit fraud. Mis-selling. Millions of cheap products are being sold online with misleading information. Some governments, such as those of North Korea, mainland China, Saudi Arabia, and UAE, restrict access to content on the internet within their territories. Sometimes the government may also enforce internet blackouts as done by Egypt government in 2011 as an attempt to stop mobilization for anti-government protests. अगला पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन। इंटरनेट के कारण एम्प्लॉइज की वर्किंग में भी कई बार डिस्ट्रैक्शन आती है। आजकल साइबर क्राइम्स भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जो हैकर्स हैं वो दूर बैठे ही हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं और हमारे कंप्यूटर में पड़ी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसको असेस करके हमारे पास हमको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे लिए, और वो उसके लिए रैंसम भी मांगते हैं। कई बार ऐसा जो है वो फंड के लिए भी किया जाता है। इस तरह जो हैकर्स हैं वो साइबर क्राइम्स करके दुनिया को बहुत ही परेशान कर रहे हैं और फ्रॉड कर रहे हैं। इंटरनेट पर जो है कई बार ऐसी चीप प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं जिसके बारे में कि मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होती है और जिससे कि आम जनता को बहुत ही नुकसान होता है। कुछ गवर्नमेंट्स जैसे नॉर्थ कोरिया, मेनलैंड चाइना, सऊदी अरेबिया और यूएई ने अपनी कंट्रीज में इंटरनेट पर कुछ थोड़ा बहुत प्रतिबंध भी लगाया हुआ है। कई बार कई कंट्रीज जो हैं वो अपने देश में इंटरनेट पर टोटली बैन कर देती हैं, जैसे कि इजिप्ट की गवर्नमेंट ने 2011 में किया। ऐसा कई बार लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए या कोई एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट को रोकने के लिए किया जाता है। Summary. Although the internet cannot replace books or classroom education, it is one of the best substitutes for those who want to gain deep knowledge on any subject. Though internet can also create havoc and its misuse can be very disastrous, the advantages of it outweigh its disadvantages. Internet will become more advanced in technology, faster and more widely accessed in the future. अब समरी की बात करें कि चाहे इंटरनेट जो है वो क्लासरूम एजुकेशन या बुक्स के द्वारा दी जाने वाली एजुकेशन को रिप्लेस नहीं कर सकता, फिर भी जो इंटरनेट है वो उनके लिए बहुत ही वरदान है जो किसी भी सब्जेक्ट पर डीप नॉलेज हासिल करना चाहते हैं। इंटरनेट के बहुत से एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, पर जहां तक एडवांटेजेस का सवाल है वो बहुत ज्यादा है डिसएडवांटेजेस के कंपैरिजन में। ऐसी आशा की जाती है कि आने वाले समय में इंटरनेट की टेक्नोलॉजी में और एडवांसमेंट होगी। इंटरनेट जो है पहले से ज्यादा फास्टर होगा और जो ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड वाइड लोग इंटरनेट की सर्विसेज को यूज कर पाएंगे। Internet and World Wide Web. The terms Internet and World Wide Web are often used interchangeably, but Internet and World Wide Web are two different things. In simple words, the Internet is simply the way computers connect to each other in order to share information. Internet is a global network of millions of computers using the cables, routers, switches, servers, cellular towers, satellites, etc. that make up the entire network. The cables have been laid
overground, underground, and also in the sea. World Wide Web is a collection of web pages connected through hyperlinks and URLs. The internet provides lots of different services, and World Wide Web is only one of the services provided by internet. The internet is also used for email, instant messaging and FTP. अब हमारे पास क्वेश्चन है कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब क्या एक ही चीज है या डिफरेंट टर्म्स हैं। तो आंसर है कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब को आमतौर पर एक दूसरे की जगह पर यूज किया जाता है, पर यह गलत है। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब दोनों ही डिफरेंट थिंग्स हैं। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो इंटरनेट में कंप्यूटर जो हैं वो आपस में कनेक्ट होकर इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। इंटरनेट एक मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स का ग्लोबल नेटवर्क है जो कि आपस में केबल्स, रूटर्स, स्विचेस, सर्वर्स, सेलुलर टावर्स और सैटेलाइट्स के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं। इंटरनेट के लिए ओवरग्राउंड, अंडरग्राउंड और सी में केबल्स बिछाई गई हैं। वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो वेब पेजेस का एक कलेक्शन है जो कि आपस में हाइपरलिंक्स और यूआरएल्स के द्वारा कनेक्टेड होता है। इंटरनेट जो है बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और वर्ल्ड वाइड वेब उनमें से सिर्फ एक सर्विसेज का नाम है। इंटरनेट जो है वो जो दूसरी सर्विसेज देता है उनमें ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग और एफटीपी आते हैं। The World Wide Web or web consists of a worldwide collection of electronic documents. Each electronic document on the web, called a web page, can contain text, graphics, animation, audio, and video. Additionally, web pages usually have built-in connections to other documents. A website is a collection of related web pages and associated items such as documents and pictures stored on a web server. One way to look at the difference is think of the internet as a library. Think of the books, magazines, newspaper, DVDs and other media it contains as websites. वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसको www या वेब के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स का एक वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। ईच इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जिसको कि हम वेब पेज कहते हैं उसमें हो सकता है टेक्स्ट हो या कुछ ग्राफिक्स हो या एनिमेशन हो या ऑडियो हो या वीडियो हो। वेब पेजेस जो होते हैं आमतौर पर उनका किसी न किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ इनबिल्ट कनेक्शन होता है। एक वेबसाइट में बहुत से वेब पेजेस होते हैं और उनमें वेब पेजेस में कई इंफॉर्मेशंस अवेलेबल होती हैं और वेबसाइट जो है वो किसी वेब सर्वर पर स्टोर होती है। अगर हम इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब को आपस में कंपैरिजन करना चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम इंटरनेट को एक लाइब्रेरी की तरह सोचें और लाइब्रेरी में पढ़े बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और दूसरे मटेरियल को हम वेबसाइट्स कह सकते हैं। Internet or World Wide Web. So, Internet originated sometimes in late 1960s. Nature of Internet is hardware. Internet consists of computers, routers, cables, servers, cellular towers, satellites, etc. Internet is governed by the Internet Protocol. Internet is independent of www. Internet is infrastructure. Internet can be viewed as a big library. Computing devices are identified by IP addresses. Unregulated. 4.66 billion users in January 2021. World Wide Web. English scientist Tim Berners-Lee invented the World Wide Web. Nature of www is software. www consists of information like text, images, audio, video which is accessed through internet. The web is governed by the Hypertext Transport Protocol. www depends on internet to work. www is a service on the top of that infrastructure. Books, magazines, newspaper, DVDs, and other media contained in the library can be viewed as websites. Information pieces are identified by Uniform Resource Locator. Some regulations in place. 1.7 billion websites. 3 new websites are created every second worldwide. अब यहाँ पर आपके सामने इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच में जो डिफरेंस है
वो टेबुलर फॉर्म में दिखाया गया है। इंटरनेट जो है वो लेट 1960s में ओरिजिनेट हुआ और दूसरी तरफ वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसकी इन्वेंशन जो है वो इंग्लिश साइंटिस्ट टिम बर्नर्स ली ने की थी। अगर हम इंटरनेट की बात करें तो उसकी नेचर हार्डवेयर है और वर्ल्ड वाइड वेब की नेचर सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट जो है वो कंप्यूटर्स, रोटर्स, केबल्स, सर्वर्स, सेलो टावर्स, सैटेलाइट्स एक्सेट्रा का बना होता है। और वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो इंफॉर्मेशन, उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है जिसमें कि टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो हो सकते हैं जिसको हम इंटरनेट के द्वारा असेस कर सकते हैं। इंटरनेट जो है उसको गवर्न करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं और वेब जो है उसको कंट्रोल करने के लिए या गवर्न करने के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होते हैं। इंटरनेट जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब पर डिपेंडेंट नहीं है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो काम करने के लिए इंटरनेट पर डिपेंड करता है। इंटरनेट को हम इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं और जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ऊपर वाली सर्विस है। इंटरनेट को हम एक बिग लाइब्रेरी से कंपेयर कर सकते हैं और उस लाइब्रेरी में पड़ी बुक्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर जो हैं उनको हम वेबसाइट से कंपेयर कर सकते हैं। कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं आईपी एड्रेसेस से और वर्ल्ड वाइड वेब में जो इंफॉर्मेशन पीसीस हैं वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं। इंटरनेट जो है वो बाय एंड लार्ज अनरेगुलेटेड है और वर्ल्ड वाइड वेब में कुछ रेगुलेशंस अवेलेबल हैं। इंटरनेट के यूजर्स का जहां तक सवाल है वो लगभग जनवरी 2021 में उनकी संख्या 4.66 बिलियन थी और वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली वेबसाइट्स जो हमारे वर्ल्ड ओवर हैं आज की डेट में वो 1.7 बिलियन है। हर एक सेकंड में वर्ल्ड वाइड 3 नई वेबसाइट्स क्रिएट हो रही हैं। Next, summary. We can say that internet connects devices and web connects people. Internet is infrastructure and World Wide Web is a service on the top of that infrastructure. The internet allows access to World Wide Web. Without it, we have no way of accessing thousands of websites out there. Both the internet and the web serve unique purposes but work hand in hand to provide information, entertainment, and other services to the public. अब हम समरी की बात करें कि इंटरनेट जो है वो डिवाइसेस को जोड़ता है और वेब जो है वो लोगों को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट को हम इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं और वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक टॉप पर सर्विस है। इंटरनेट जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस देता है। इंटरनेट के बिना हम जो इंटरनेट पर लाखों वेबसाइट्स हैं उनको एक्सेस नहीं कर सकते। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब जो है हर एक का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है। ये दोनों जो हैं इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब ये दोनों मिलकर जो है वो पब्लिक को इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट और दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। If you like our video, please like, share and subscribe our channel. Thank you.